अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट इकराम अली। इस टाइम मैं मौजूद हूं कोट राधा किशन के एक इलाके के कब्रिस्तान में, जहां पे 12 साल अहमद अली को 5 मुल्जिमान ने बदफाली का निशाना बनाया और उस पे ईंटों के वार से तशद्दुद करके मौत के घाट उतार दिया। हम जाएंगे अहमद अली की कब्र पे, बात करेंगे उनकी वालिदा से, जानेंगे क्या तफसील है केस की। अस्सलाम वालेकुम। क्यों रो रही हैं आप इतना? मेरे अहमद ने जालिमा ने तंग किया। मेरा जवान बच्चा, मेरा मासूम बेटा सी, मेरी कोई शाह नहीं रह गई इनके बगैर। होया की है? जिंदगी है। होया की है बाजी, दसो मैंने होया की है? सालम साडे गुआंढी बैठे सन दरिंदे, पता नहीं किदन ते मेरे अहमद ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦੇ ਸਨ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕੇ ਲਗੇ ਫਿਰੇ। बाजी सबर करो। मेरा अहमद बाजार गया, मेरे अहमद ਨੂੰ ਰਾਤ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ। किथे गया सी अहमद? मेरा अहमद बाजार गया सी। बाहर गया सी? मेरा अहमद बाजार गया ਕੰਮ ਤੇ, तो वापस नहीं ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਣ ਦਿੱਤਾ। की काम करदा सी माजी? ਉੱਥੇ ਚਾਹ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਮੇਰਾ ਅਹਿਮਦ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਅਹਿਮਦ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਲਦੀ ਸਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੇ ਅਹਿਮਦ ਦੇ ਮੁਜਰਮ ਮਰਨ। नहीं बाजी, तुसी हौसला करो, इंशाल्लाह असी इंसाफ हुन जरूर दिलवावांगे। ते तुसी हुन थोड़ा हौसला करो, सबर करो। ਮੈਨੂੰ ਅਹਿਮਦ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲੱਭਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਅਹਿਮਦ ਵਾਪਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮਿਲਦਾ ਹੁਣ। ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਜੀਵਾਂਗੀ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਦਿਲਵਾਣਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਆ ਮਾਜੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਲਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਆਏ ਆ। ਤੇ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਹੋਇਆ ਵੇ, ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇਗਾ। ਮੇਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਾ ਵਾਦੀ ਕਰੇ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ ਬਾਜੀ? ਮੇਰੇ ਅਹਿਮਦ 12-13 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ। 12-13 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਕੰਮ ਤੇ ਕਿਦੋਂ ਪਾਇਆ ਸੀ? ਡੇਢ ਕੁ ਮਾਹ ਹੋਇਆ ਸੀ। 1.5 ਮਹੀਨਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕੰਮ ਤੇ ਪਾਏ। ਇਕੱਲੇ ਪਾਲਦੇ ਪਿਓ? ਹਾਂਜੀ, ਇਕੱਲੇ ਪਾਲਦੇ ਪਿਓ। ਸ਼ੋਹਰ ਕਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ? ਇਹ ਸ਼ੋ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ? ਮੇਰੇ 6 ਬੱਚੇ ਨੇ। 6 6 ਬੱਚੇ ਸੀ। ਅਹਿਮਦ ਸਨੇ ਅਹਿਮਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਅਹਿਮਦ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਸੀ। ਮੁੰਡੇ ਕਿੰਨੇ ਜੇ? 3 ਬੇਟੇ ਸੀ, 3 ਬੇਟੀਆਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਹੁਣ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ? मेरा एक बेटा चला गया, मेरा घर खाली हो गया। अल्लाह ने कहते ऐसी सह लेंदे, साडे नाल गंदे मुजरम ना कीते। साडे नाल नजायज। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਹਿਮਦ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਬਾਜੀ? उस तो पहले अहमद बस, अहमद बच्चा सी, अहमद बस 12-13 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਵਰਗਲਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਬਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ? ਅਸੀਂ ਮੰਗੇ ਸਾਡੀ ਰਹਿ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਦੇਣੀ। ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਆਇਆ ਨੂੰ, ਅਹਿਮਦ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 1.5 ਮਾਹ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੱਸੋ, ਪਹਿਲੇ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੋ? ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਮੰਗੇ ਮੰਡੀ ਰਹਿੰਦੇ। ਮਾਂਗਾ ਮੰਡੀ ਪਹਿਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੋ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਹੋਇਆ? ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕੁ ਸਾਲ ਡੇਢ। ਸਾਲ ਡੇਢ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ। ਤੇ ਉਹ ਅਹਿਮਦ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਕਿਦੋਂ ਪਾਇਆ ਸੀ? ਅਹਿਮਦ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਪਾਇਆ 1.5 ਕੁ ਮਾਹ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਡੇਢ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹੀਨਾ। ਸੀ ਮੰਮਾ ਪਕੜਾਏ ਤੇ ਬੈਠਾ ਬਹਿਣਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਬੜੀ ਬਾਹ ਬੰਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮਾਂ ਬੰਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੰਮਾ ਤੂੰ ਰੋਇਆ ਨਾ ਕਰ, ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਮੰਮੀ ਤੈਨੂੰ ਰੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ। ਸਾਸਮੰਦ ਬੱਚਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ। मैं करांगा खुद मामू मैनू काम मैं करांगा। ਮੇਰੇ ਅਹਿਮਦ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਨਾ। ਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਥੋੜਾ ਹੀ ਅਰਸਾ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ। ਤੇ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ? ਬਾਜ਼ਾਰ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਮੈਂ। ਅੱਛਾ, ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਘਰ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਈ ਆ, ਮੈਂ ਆਂਦੀ ਅਹਿਮਦ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਲੈਣ ਆਈ ਆਂ, ਦਾ ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਆਵੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਮੀ ਮੈਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਮੈਂ ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਅੱਛਾ, ਫੇਰ ਅਹਿਮਦ ਘਰ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਰਾਤ ਹੀ ਫੜ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਮਿਲਦੇ ਸਾਂ? ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਗੇਮਾਂ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਸੀ। ਗੇਮਾਂ ਖੇਲਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਹਿਮਦ ਪਹਿਲੇ? ਗੇਮਾਂ ਖੇਲਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਹਿਮਦ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੰਮਾ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਭਾਈਆਂ ਖੇਲਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲੈਣਾ, ਮੰਮਾ ਮੈਂ ਖੇਲਦਾ ਬਾਹਰ ਖਲੋ ਕੇ ਵੇਖਦਾ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਸੀ ਅਹਿਮਦ ਤੇ? ਹਾਂਜੀ, ਅਹਿਮਦ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਅੰਨੇ ਗਲਾਜ਼ਤ ਦੇ ਬੜੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਗੰਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੇਖਿਆ, ਮੇਰੀ ਮੰਮਾ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਦਾ ਘਰ ਗਰੀਬ ਹੈ।
ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੀ ਬਾਜੀ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦੱਸਿਆ? ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਅਸੀਂ ਲੱਭਦੇ ਹੀ ਫਿਰੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਪੱਠੇ ਲੈਣ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕੱਚੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸੁੱਟ ਗਿਆ ਨੇ ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰ ਕੇ। ਕਿਹੜੇ ਆਦਮੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਪੱਠੇ ਲੈਣ ਆਇਆ ਸੀ ਜਿੱਥੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1-2 ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹ ਹੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਲੋਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਇਆ ਮੇਰੇ ਅਹਿਮਦ ਦਾ। ਉਹਦੇ ਉਹਦਾ ਹੀ ਮੁੱਕਾ ਪਿਆ ਸੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ। ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੈਗੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਉੱਥੇ? ਹੋਇਆ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਨੈਟ ਤੇ ਤਸਵੀਰ ਵੇਖ ਲਵੋ, ਸਭ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਏ। ਮਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ। ਨੈਟ ਤੇ ਤਸਵੀਰ ਵੇਖ। ਬਦਫਾਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਬੈਠੀ ਸਾਂ। ਪਹਿਲੇ ਗੁਰਬਤ ਨਹੀਂ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ, ਸ਼ੋਹਰ ਤਰਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਵੇ, ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਰਮ ਨਾ ਆਈ, ਰਹਿਮ ਨਾ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਹਿਮ ਨਾ ਆਇਆ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੀ ਨਾ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਸਲਾਮਤ ਰਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਹੁਣ ਤਾਵਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਤਾਵਨ ਕਰ ਰਹੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ? ਵਾਲੇ ਹੁਣ ਸਾਫ਼ ਦਿਲਾਵਣਗੇ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ ਨਾ। ਗਏ ਹੋ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ? ਭਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ? ਭਾਈ ਸੇ ਪੁੱਛ ਲੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹੋਗੇ? ਉਹ ਤੂੰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਰਾ ਦੁੱਖ ਸਮਝਾਂਗੀ, ਉਹਦਾ ਤੇ ਵੀ ਬੇਟਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਗਿਆ ਵੇ। ਹਾਂਜੀ ਕਵਾਂਗੇ मरियम नवाज साहब मेरी बहन है, इंशाल्लाह हमारे साथ जरूर इंसाफ हमारा हमें दिलाएगी, उन्हें छूट देगी। मार दिता जाए, मासे उन्होंने देखना नहीं चाहते, जिन्ने जने है ने मर जान। उन्होंने साढ़े सामने गोली बजे, मैं मां वा, मैं उन्होंने देखना चाहनी हां मेरे सामने गोली बजे। मैं हॉस्पिटल दे आदे अहमद दे कोल रही हां, मेरे कोलों डॉक्टरां नेड़े आंदियां सी, मेरे कोलों तकरीर बर्दाश्त नहीं सी हुंदी, मैं परां नूं अखां कर लैंदी सा। ਤੇ ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਬੋਲਿਆ? ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਸੀ? अहमद बोलदा नहीं सी। अहमद मसा हुण लत्त बांह लाण लग पिया सी, थोड़ियां थोड़ियां अखां खोलियां सी। ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਮਾਗ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਮਾਗ ਫੇਰਦਾ ਸੀ ਉਹਦਾ? ਇੱਟਾਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਇੱਕ ਬਦਫਾਲੀ ਕੀਤੀ 5 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ, ਫਿਰ ਇੱਟਾਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਦਿਮਾਗ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਬੋਲਿਆ ਨਾ ਮੈਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਮੂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੀ ਕਰ ਦਈਏ। ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਪਣੇ ਮਾਮੂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਟਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਹਾਲੇ 10-12 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਸਿਰਫ? ਹਾਂਜੀ, 13ਵੇਂ ਸਾਲ ਚ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਚਲੋ ਬਾਜੀ, ਅੱਲਾ ਤਨ ਸਬਰ ਦੇਵੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਆਏ ਆ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਲਾਹੌਰ ਰੰਗ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਲਵਾਣ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਜਲਦੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਚਾਹੀਦਾ ਇਨਸਾਫ। ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਨਾਨੀ ਲੱਗਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਨਾਨੀ ਲੱਗਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਲਾਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿ ਕੀਤਾ ਵੇ? ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਲਾਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜਾਣਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੋਈ ਮੂੰਹ ਮਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ? ਉਹ ਜੱਟ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਐਵੇਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲੱਬ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਉੱਥੇ ਉਹ ਗੇਮਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ। ਗੇਮਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਸਹੀ ਹੈ, ਸਹੀ ਨਸ਼ਈ ਸੀ, ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤਰਿੰਦਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੇਚਦਾ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਵੇਚਦਾ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਹਿਮਦ ਨੂੰ ਕਦੀ? ਅਹਿਮਦ ਨੂੰ ਮਨਾ ਉਹਦੇ ਮਾਮੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਦੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਸੀ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਅਹਿਮਦ ਆਵੇ, ਮੇਰਾ ਭਾਂਜਾ ਏ, ਮੇਰਾ ਅਹਿਮਦ ਆਵੇ, ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਵੜ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਮਾਰ। ਅਹਿਮਦ ਹੈਗਾ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਅਹਿਮਦ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੰਜ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕੋਲ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਸਨ ਪਹਿਲੇ? ਹਾਂ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਉਹਦੇ ਮਾਮੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਗੇਮ ਚ ਆਏ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਥੱਪੜ ਲਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਗੋਂ ਬਿਠਾਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੀ ਕੁਛ ਹੋਰ ਸੀ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਤਰਕੀਬ ਬਿਠਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਸੀ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ ਹੁਣ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ ਨਾਲ? ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ। ਕਰੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਲਵਾਉਣਗੇ। ਇਨਸਾਫ ਦਿਲਵਾਏ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਐਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਤੜਪਿਆ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਤੜਪਣ ਸਾਡੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜਣ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵਾਂ ਕੋਲ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੇਖਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਅਹਿਮਦ ਤੜਪਦਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਮਾਵਾਂ ਇੰਝ ਹੀ ਤੜਪਣ।
जी बिल्कुल, मरियम नवाज साहिबा से हमारी भी ये अपील है। एक माँ की सिसकती भरी आहें जो हैं वो आप तक पहुंच रही होंगी। आप भी एक माँ है, आप माँ का दुख समझ सकती हैं। इनका बेटा गया है, मासूम जान गई है और उन दरिंदों ने इतने बुरी तरह से वहशियाना तरीके से कत्ल किया है कि वो बच्चा कहीं घर ना बता दें। तो मेरी काइंडली अपील है तमाम इदारों से, अदलिया से, वज़ीर आला पंजाब से और आईजी पंजाब साहब से, काइंडली इस इलाके में इंसाफ फराहम किया जाए। किसी एक को यहाँ पे ऐसी सजा दी जाए कि एग्जाम्पल सेट हो जाए ताकि उनके दिलों को भी सुकून मिले। इस टाइम मैं अहमद अली की कब्र पे मौजूद हूँ जिसको दरिंदा सिर्फ जालिमों ने बेदर्दी से कत्ल करके मौत के घाट उतार दिया है। मेरे साथ उसके भाई और ताया मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बहुत अफसोस है हमें आपके जो भी नुकसान हुआ है, हम उसका अजाला तो नहीं कर सकते लेकिन आपकी आवाज़ जो है अपने टीम के तवस्सुत से आप पहुंचा सकते हैं हुकाम बाला तक। जी, ये मेरा भतीजा है, इसको रात को मार के उधर फेंक के चले गए। पानी लगाने वाला एक आया, उसने कॉल की 11 भाई पे, वो फिर उसके बाद उन्होंने पुलिस वालों को कॉल की। वो इधर कच्ची कोठी हॉस्पिटल लेके गए, उन्होंने कहा जर्नल ले जाओ। अच्छा। वो जर्नल ले गए, फिर उधर हमें पता ना चला, रात सारी हम ढूंढते रहे। मोबाइल पे तस्वीरें भेजी उन्होंने, किन्होंने? पुलिस वालों ने। अच्छा। वो फिर तस्वीरें देखी, हमें पता चला वो जनरल हॉस्पिटल पे। फिर हम उधर गए। ईंटों से वार किया था तो उसकी हालत देखी नहीं गई होगी आपसे? ईंटों से मार मार के ये सब हड्डियां सर की तोड़ दी थी, दिमाग की हड्डियां टूट गई थी उससे। हड्डियां तोड़ दी थी सब। ये हड्डियां पुलिस वालों के पास है, वो फिर हड्डियां उधर से हड्डियां उसकी रद्दा हो गई थी जी। वो हड्डियां फिर उधर लेके गए थाने में, हड्डियां उनके पास पड़ी हैं पुलिस वालों के। तो इतनी सफाकी के साथ उन्होंने कत्ल किया इस बच्चे को। हाँ जी। फिर हम 10-12 दिन हॉस्पिटल रहे। उन्होंने कहा ये अभी नहीं बच सकता, इनकी एक दिमाग इनका खत्म हो गया है। जिस तरह से उस पे वार किया जी, इनके सांस है चंद दिनों के लिए। तुसे जानते हो मुलजिमां नु? देखिया जाना नु इलाके च रहंदे ने? जी, मैं तो मांगा मंडी उनका ताया हूँ, रहता हूँ। अच्छा। ये उनके मामू है, इन्होंने देखा, उनके मामूओं ने देखा उनको सबको। ठीक है, कोई अपील करना चाहेंगे हुकूमत पंजाब से? मेरे वज़ीर आला पंजाब से दरखास्त है, ये जो है इनको मारा जाए, इसी तरह ही मारा जाए, इनको पूछा जाए। बिल्कुल ऐसे ही। ताया की हालत आपने देखी है कि वो किस तरह से रो रहे हैं, बात नहीं कर पा रहे, उसकी हालत बताते हुए कि आप सुन सकते हैं। उन्होंने कहा है कि उस बच्चे की हड्डियां जो हैं वो अलग हो गई थी और वो पुलिस वालों ने अपने पास रखी थी, वो बाद में अस्पताल पहुंचाई गई। इतनी सफाकी के साथ इस बच्चे पे तशद्दुद किया गया है सिर्फ इस डर से कि उन पे कोई इल्जाम ना आ जाए, वो पकड़े ना जाएं। इतनी सफाकियत, इतनी जहन में गलाजत भरी हुई है, इतने आप हम दरिंदा सिर्फ हो चुके हैं। इसके भाई से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? हमजा। हमजा, आप अहमद अली से छोटे हो? बड़े भाई हैं आप उसके? तो हमें बहुत अफसोस है आपके भाई का। जी, ये ना काम पर गया सुबह 7 बजे। कहाँ काम पे जाता था? करीब ही कहीं? ये मेरे साथ ही करीब जाता था। अच्छा। इससे थोड़े दूर था। शाम को 7-7:30। एक साथ जाते थे आप काम पे? नहीं, अलग अलग जाते थे। ये काम पर गया, काम से वापस आ रहा था, वापस नहीं घर नहीं आया। मैं 12 बजे रात को वापस आता, छुट्टी मुझे 12 बजे होती है। तो ये कितने बजे आता था? ये 7-7:30-8 बजे घर आ जाता था। अच्छा। हम इसे ढूंढते रहे, अम्मी ने बताया अभी तक तुम्हारा भाई घर नहीं आया। हम इसे ढूंढते रहे, काफ़ी नहीं ढूंढा। मैंने दोस्तों को भी कॉल की, यहाँ काम करता था उससे भी कॉल की, उन्होंने कहा यहाँ से चला गया, घर नहीं वापस आया। 2 से 2 बजे तक हम इसे ढूंढते रहे हैं। 3, 3:30, 4 बजे ना कोर्ट राधा किशन का ग्रुप है, वहाँ पे पिक्चर्स आ गई थी कि ये ना बच्चा उधर सैलमा मोड़ है, कोई व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है जिसपे तस्वीरें आई थी? अच्छा। पिक्चर्स आ, मेरे दोस्त आ गए मुझे बताने के लिए। उन्होंने मुझे बताया कि भाई ना आपका भाई उधर पड़ा हुआ। उससे पहले ना 1122 को किसी ने कॉल कर दी थी, कोई पानी वगैरह लगाने आया था ज़मीनों को। वहाँ से वो सिविल हॉस्पिटल है, सिविल से रेफ़र करके उन्हें जनरल हॉस्पिटल भेज दिया कि हमारे बस से बाहर आप इसे कहीं और ले जाए, हम इसे नहीं बचा सकते। तो फिर मेरे ताया और मेरे मामू चले गए हॉस्पिटल। तो ऐसे पता चला हमें
के 5-6 मुल्जिमान उन्होंने सारी रात के साथ बदतमीजी ज़्यादती के लिए। जब इसने कहा कि मैंने अपने मामू को बताऊंगा, अपने भाई को बताऊंगा, वो आपको पूछ लेंगे, आपने को मेरे साथ गलत किया, तो उन्होंने खुद को बचाने के लिए ऊपर इल्ज़ाम ना आए, उन्होंने ना उस सर में बुरी तरह से ईंटें मारी हैं। ईंटें मार के तशद्दुद करके उसे ना मार कर फेंक दिया है। मेरी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से गुजारिश है कि वज़ीर-ए-आला पंजाब IG पंजाब DPO कसूर से चाहिए कि इनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए जल्द से जल्द। वैसे जैसे इन्होंने मेरे भाई का कत्ल किया ऐसे इनका भी कत्ल हो। कैसा टाइम गुजरा था? कितने आप शुरू से यहीं रह रहे थे? नहीं, शुरू से नहीं, हम मांगा मंडी रह रहे। मांगा मंडी रहते थे। यहाँ क्यों आए? नहीं, वहाँ से घर ख़राब था ना, इसलिए मामू लोगों के पास आ गए थे। पापा बहुत तंग करते थे। क्या कहते थे? नशा करते थे, मारते थे। पापा नशा करते थे, मारते थे, इसलिए हम यहाँ पे मामू के पास आ गए थे। तो खर्चा कौन पूरा करता था? अच्छा, मैं खुद ही काम करता था। खुद काम करते थे? लोग भी करते थे। तो वालदा क्या करती थी आपकी? वालदा घर ही रहती थी। घर रहती थी। जी जी। तो यहाँ पे मामू के पास आए थे? मामू के पास। कितना अरसा हो गया यहाँ आए हुए? तकरीबन 1 साल हो गया। 1 साल हो गया यहाँ पे आए हुए। तो काम पे कब से जा रहा था? मतलब काम पे नहीं था जाता, मैं ऐसे बोलता था तुम ना जाओ यार, अब तुम छोटे हो। कहता यार तुमसे अकेले से काम नहीं संभाला जाएगा घर का। आप वाहिद कफील हैं घर के? जी। तो कह रहा है इसलिए मैं तुम्हारा साथ दूंगा, मैं भी काम पे जाया करूँगा। इसलिए मैं उसे मना करता था, फिर भी वो काम पे जाता था। कहता यार तुमसे अकेले से नहीं संभाला जाएगा। बस वो आपकी बाजू बनना चाह रहा था, लेकिन उनको जालिमों ने इतनी मोहलत नहीं दी है। चलें, अल्लाह पाक आपको सब्र दें। ऐसी शख्सियत और अहले इलाका मौजूद हैं इस केस के हवाले से। मजीद जो तफसील है हम इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर जी, क्या नाम है आपका? मोहम्मद अली। मोहम्मद अली साहब, अच्छा मुझे ये बताएं कि आप तक क्या तफसील आई है और जो पुलिस के हवाले से अभी तक कार्रवाई हुई है, आप बताइए इस बारे में। ऐसा हुआ है कि एक बच्चा उसको घर से दुकान पे काम करता था, उसको एक बच्चा लेके गया है, एक लड़का लेके गया है और 4-5 लोग उनसे ज्यादती की। उसके बाद उसने बोला मैं घर जाके बताऊँगा, तो उन्होंने उसको मार दिया। उसके पत्थर मारा है, उस दोनों जगह उसकी बाजू टूटा है और उसे चरी पे फेंका है। उस तो बाद बेचारा अपने वालों मार के सट गया है, मगर एक अल्लाह ताला ने थोड़े दिन सार रेखा से हले और रेड टूट के रस्ते दे आया। लोगों ने देखा है तो फिर लोग के अस्पताल चुके ले गए और कुछ दिन बाद वो बेचारे की डेथ हो गई। उन लोगों को जानते हैं आप? वो कौन है? नहीं जानते, बल्कि पूरा शहर शनाख्त हुई हो? कुछ लोग पकड़े हुए हैं जो ना, उसमें पुलिस वाले भी नहीं कर रहे, क्लियर नहीं कर रहे। तो जो क्लियर करने के सामने आएंगे सारे जो पकड़े हुए हैं वो कौन है? वो इधर कोर्ट एक्शन की है, कोर्ट राधा किशन के। उस बच्चे के जानने वाले हैं? कौन है वो लोग? नहीं, एक तो बच्चे के हम 2 हमसाए हैं बच्चे के। अच्छा, 2 बच्चे के हमसाए हैं? हमसाए हैं, आस-पास रहते हैं जो पकड़े हुए हैं, और 2 लोग हो रहा है। ठीक है, तो मुझे ये बताएं जो कसूर है अभी तक जो भी रियन लगता है इसका, कोर्ट राधा किशन है, ये हब बनता जा रहा है ना चाइल्ड सेक्स के हवाले से, तो आपने अभी तक क्या किरदार अदा किया? नहीं, हमने किरदार क्या करना है, असल में कसूर इस हवाले से बदनाम है। आज तो 1.5 साल पहले एक इधर है कुल्लर साहब, उसके बेटे के साथ हुआ था। ये कुछ केस रजिस्टर्ड हो जाते हैं ना, कुछ नॉन रजिस्टर्ड ही रहते हैं, लेकिन है तो हब भी ना ये। हाँ, जी। मगर उस वक्त मैंने खुद जनाजे में कहा था कि इस बंदे को शरेआम गोली मार दी जाए तो क्या तो बना? शायद ये रुक जाए, मगर वो किसी ने इंटरेस्ट नहीं लिया। वो उसको फिर जेल छोड़ दिया, जेल बैठा। वो जेल जाके अगर पहले काम होता और उनके साथ होता ना, तो शायद ये वाक़या ना होता। मैं अब भी कह रहा हूँ, अगर इन लोगों को सजा ना मिली तो ये काम चलता रहेगा। कोर्ट राजस्थान के लोग हैं ना, वो बेहिस हैं। बेहिस हैं किस मामले में? इस मामले में कि हर बंदे ने घर बैठे मोबाइल पे मज़ामत करते हैं। कल उसका जनाजा था, कोई लोग नहीं आए, कोई भी नहीं आया। बहुत कम लाए, कुछ सियासी लोग नहीं आए। सियासी लोग तो कल कोई भी नहीं आया। और सियासी लोगों में कौन लोग शामिल हैं? सियासी लोग जो यहाँ पे जो भी हैं, अब कभी मैं कभी नाम लूँगा तो फिर कोई मसला बनेगा, मैं इसलिए नाम नहीं लूँगा उनका। हर बंदे को पता है। शहर में कोई लोग नहीं आए, DSP से मिला हूँ, SSO से मिला हूँ। बल्कि आप ताउन कर रहे हैं लवाहिकीन की फैमिली के साथ? लवाहिकीन बिल्कुल मेरे छोटे भाई हैं। मेरे लिए कल भी बोला है, आज भी, बल्कि पहले भी बोला था कि हम बिल्कुल आपके साथ हैं, जहाँ चाहें किसी भी जगह जाना हम तैयार हैं। ठीक है, तो पुलिस वालों का अभी क्या कहना है? जो मुलजिम उन्होंने पकड़ लिए हैं, किसी ने इकरार जुर्म किया है? हाँ, किया है। किन लोगों ने? कितने लोगों ने? उसमें 2 लोग हैं जो उन्होंने इकरार जुर्म किया है। 2 लोगों ने इकरार जुर्म किया है। जो क्या बयान है उनके? क्या उन्होंने उनके बयान? उन्होंने मौका जाकर खुद दिखाया भी, ये जब फलां जगह पे हमने इसके साथ ज्यादती की है और फलां इसको उसके बाद सेलिब्रिटी मारी है और फलां चल में जाके फेंक के हैं इसको। ठीक हो गया। अच्छा, तो कितने लोग हैं? 5 लोग। 5 लोग हैं। और पकड़े कितने गए? हैं, पकड़े 4 लोग हैं। पकड़े 4 लोग हैं, एक फरार है इसमें से। हाँ जी।
ठीक है मैम, सबसे बड़ी बात है कि हमारे में पूरे पाकिस्तान में लॉ ऑर्डर नहीं है। जब तक हम अपने कानून की पाबंदी नहीं कर सकते, जबकि इसमें 1.5 साल पहले एक वाकया कोट राधा किशन में हुआ था, वो उसका DNA भी हो गया है। पूरी कार्रवाई पुलिस ने अच्छी तरह मुकम्मल करके दे दी है, लेकिन अभी तक हमारी मुअज़्ज़ज़ अदलिया उसको लटकाए हुए है। उस बंदे को सजा नहीं अभी तक हुई। जब अगर उसको चलो गोली मारनी तो बात की बात है ना जी, जबकि हमारे लॉ में नहीं है कि हम यहाँ कटहरे में कहीं आके गोली मार दें, लेकिन आया कि उसको सजाए मौत होनी चाहिए थी। अब कि अभी तक वो केस लटक रहा है। कल उसका बाप रो रहा था कि मुझे 15 माह हो गया अदालतों में चक्कर लगाते हुए। तो अभी जो रिजवान केस है उसके बारे में आप तक क्या तफसील है, आप क्या इसमें किरदार अदा कर रहे हैं? इसमें हम अहले खाना के साथ हैं, उसके दुख दर्द में अल्हम्दुलिल्लाह हम उनके साथ हैं। अगर हम जब तक पुलिस कार्रवाई कर रही है, हमारी स्ट्राइक नहीं बनती। अगर पुलिस उनके साथ स्ट्राइक नहीं करती या उनके तावन नहीं करती, अल्हम्दुलिल्लाह हम पूरा शहर बंद कर देंगे इनके लिए। अच्छा, इससे पहले भी ऐसे वाकयात हुए हैं ना? इससे पहले भी तो हुए, पहले शहर क्यों नहीं बंद हुआ? यहाँ की तारीख है, शायद आप नहीं जानते, तकरीबन 20 साल पहले एक बच्ची के साथ रेप हुआ था। अंजमनी ताजरा ने पूरे 7 दिन कोट राधा किशन बंद रहा है। मैं अभी की बात कर रही हूँ ना, इससे पहले आप कह रहे हैं 2 दिन पहले वाकया हुआ है, हफ्ता पहले हुआ है, तब शहर क्यों नहीं बंद हुआ? लेकिन वो गांव के है ना जी, जो पहले 2 वाकयात हुए हैं वो गांव में हुए हैं। तो गांव वाले कंसीडर नहीं होते? इधर कंसीडर नहीं होते, उनका वो उधर तक मामला होता है, तो लेकिन वो खुद आप करते हैं। लेकिन हमारा शहर के हद तक हम इनके साथ तावन करते हैं। अगर वो लोग हमें आके अप्लाइज करें, हमें कहें हमारे साथ, अल्हम्दुलिल्लाह हम उनके भी साथ खड़े हैं। लेकिन अभी तक पुलिस जो भी इंक्वायरी कर रही है उनके मुताबिक 2 आदमी उन्होंने पकड़े हैं। 2 को उन्होंने कहा है कि ये जो है ना जी उस शामिल नहीं है उस केस में। लेकिन डीएसपी साहब ने ये वाज़ेह उनको बताया कि ये बंदे मैंने छोड़ने नहीं है, इनका डीएनए करवाएंगे, अगर डीएनए इनका क्लियर हो तब छोड़ेंगे। मैं बेसिकली जो हमारी ऑर्गेनाइजर कमेटी है ना राई कम्युनिटी की, मैं उसका ऑर्गेनाइजर मेंबर हूँ तहसील कोट राधा किशन का। उसके अलावा मेरे भाई हैं, ये इनसे वैसे भी ताल्लुक़ है, दोस्त से बड़े अच्छे। इस केस में के बारे में क्या राय है आपकी? इस केस के बारे में ये राय है कि मेरा आपकी वसातत से एक पैगाम है इस इलाके के टाउटों को, जो पुलिस के टाउट हैं यहाँ पे बिल्कुल निशानदेही है उनकी, बिल्कुल है, सब कुछ है। और कुछ लोगों को बदनाम करने की भी कोशिश की जा रही है, जैसे कि हमारे चौधरी साहब एक मौजूद आदमी है, इनके ऊपर भी इल्ज़ाम 1-2 टाउटों ने लगवाया। क्या इल्ज़ाम लगाया? कि जी ये इस केस में पैसे खा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। हालांकि ये खुद जेब से पैसे लगा के उनके साथ चल रहे हैं, ऐसा कोई मामला नहीं है। लेकिन मैं आपके ये अगर लवाहिकीन के हक में है तो इन पे इल्ज़ाम है कि ये पैसे खा रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि ये बंदा पीछे हट जाए और हम लवाहिकीन को थ्रेट करके सुलह करवा दें, उसका मेन मकसद जैसे होता है आज तक। मेरा आपकी वसातत से ये टाउटों को पैगाम है कि आपके भी बच्चे हैं, अगर आपके बच्चे के साथ ये जुल्म हुआ होता तो क्या आप इस चीज़ को बर्दाश्त करते? क्योंकि ये पूरे कोट राधा किशन का इज्तिमाई मसला, ये बच्चा एक घर का नहीं था, ये पूरे कोट राधा किशन का बच्चा था। अहले मोहल्ला को भी अपना किरदार इसमें अदा करना चाहिए, इनके साथ कोऑपरेट करना चाहिए। कोई साथ में दे रहा भी अहले मोहल्ला साथ दे रहे हैं कुछ लोग जो यहाँ से जो मुकामी मोहल्लेदार जो मुलज़म गिरफ्तार हुए हैं ना, उनकी सपोर्ट के लिए इनको मुख्तलिफ तरीकों से थ्रेट भी कर रहे हैं, गालम गलोच भी इन लोगों के साथ किया है बाज़ लोगों ने। हम लोगों ने फिर मैंने इस भाई को फिर यही कहा था, मैंने कहा आपको थ्रेट करने की कोशिश करें ना तो आप हमें कॉल कीजिएगा, फिर हमको बताएंगे कि थ्रेट कैसे किया जाता है। अपने हक के लिए लड़ना भी जिहाद है, आपको ये चीज़ का पता है कि अगर हमारे बच्चे को इंसाफ नहीं मिलता फिर हम जिस हद तक भी जा सके हम जाएंगे। और जो टाउट या जो भी उनके साथ फिर आएगा मुलज़म पार्टी के लिए, हमारे लिए भी वो भी मुलज़म ही है, उसको किसी किस्म की राहत नहीं मिलेगी, ख्वाह वो कोई भी होगा। क्योंकि ये एक बहुत, आप यकीन करें, जो बच्चा जिसके खुद बच्चे हैं, जिसके अंदर थोड़ा सा भी दर्द है ना, आंसू निकल आते हैं बंदे के जब ये चीजें सामने। देखिए अगर इतनी इंसानियत हो, इतना एहसास हो, तो ये वाकया तो हुई ना। वही ना, ये जहालत की इंतहा है ना। इसमें हमारे अहले मोहल्ला का भी किरदार होना चाहिए कि हमें अपने इर्द गिर्द नज़र रखनी चाहिए। हमें कोई ऐसी मशकूक हरकत नज़र आए तो उसकी निशानदेही करें। मैं अगर इस मोहल्ले में रहता हूँ, मुझे अननोन बंदा नज़र आता है किसी बच्चे के साथ बात करते हुए, मेरा हक है इखलाकी तौर पे कि मैं उससे पूछूं कि आपका इसके साथ क्या ताल्लुक है। हम जो हमारी कम्युनिटी है ना ओवरऑल, हम खुद भी इस चीज़ के जिम्मेदार हैं कहीं ना कहीं। ये एक तल्ख हकीकत है कि हम लोग रिस्क लेना पसंद ही नहीं करते, हम किसी से पूछना दोबारा नहीं करते कि हमारी गली में अननोन बंदा क्यों आया है, हमारे मोहल्ले में किसी बच्चे के पास बंदा क्यों खड़ा हुआ है। तो इसलिए कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत किरदार हमारा भी इस चीज़ में है। नाज़रीन, मज़ीद अहले इलाका भी हमारे साथ मौजूद हैं, आपसे उनसे भी बात करवाते हैं, आइए हमारे साथ। क्या नाम है आपका? अच्छा, अहमद अली की क्या लगते हैं आप? जी हम शहरदार हैं। अच्छा, अहले इलाके हैं आप, कितने अरसे से यहाँ रह रहे हैं? जी हम तो बचपन से इधर के रहते हैं। ठीक है, यहीं पे रहते हैं। उन लोगों को जानते हैं जिन्होंने ये किया? देखें, कोई भी हो जो इस
जुर्म में मुलव्विस है। मुलव्वस है, उन्हें कैफा करदार तक पहुँचाना चाहिए। ये तो हमारा पूरे अहले इलाका का मुतालबा है। ठीक है, आप उन लोगों के साथ खड़े हैं लवाहिकीन के? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हम ही नहीं खड़े बल्कि पूरा शहर खड़ा है, इनके साथ खड़ा है, क्योंकि ये अहमद जो बेटा है वो पूरे शहर का बेटा है। बिल्कुल ऐसे ही है, और हर इस बात को समझने की बच्चे का डीएनए नहीं आया, आके हम कैसे करेंगे? तो पुलिस की पेशरफ्त ऐसा कोई भी नहीं है, बस गिरफ्तार कर लिया उन्होंने। नजर आने में तो पुलिस बहुत एक्टिव नजर आ रही है, रोज हो रहे हैं, और जिला कसूर में तो इसकी मिसाल ही नहीं मिलती। कसूर तो गढ़ बन चुका है इन चीजों के लिए। इतनी ज़हनियत में आपकी लाजत जो है वो गंदगी भरी हुई है कि आप बच्चों को नहीं छोड़ रहे हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है कि माशरा बहुत ख़राब हो चुका है। ऐसे दरिंदा सिर्फ लोग जो हैं उनको हौसला मिलता है, अगर उनको सजा वाकई मिले तो आइंदा ऐसे वाक़यात की रोकथाम हो सकती है। बिल्कुल ऐसे कोई एग्जांपल सेट की जाए तो ऐसे वाक़ये की रोकथाम हो सकती है। इलाके के हैं आप? जी इधर ही रहते हैं आप। मुझे बताएंगे थोड़ा इस केस के बारे में, क्या पता चला आपको? बच्चा बेचारा तो होटल पे काम करता है, चाय वाले पे। अच्छा। उसकी वालदा भी उधर किसी इलाके से आई थी अपने भाइयों के पास, गरीब बच्चा था, उसके साथ ये जुल्म हुआ, ज्यादती हुई है, हमें इसके साथ खड़ा होना चाहिए। तो मुझे बताएं कि वो जिन लोगों ने ज्यादती की उनको जानते हैं आप? जी वही इसी इलाके के हैं लड़के, कैसे किरदार हैं? ये बिलियर्ड है जो इधर सब स्नूकर क्लब है, तो उसमें जुआ वगैरह भी खेला जाता है? ये सब कुछ जितने भी स्नूकर क्लब है इनको बंद होना चाहिए। सबसे पहले तो ये कितने हैं इलाके में स्नूकर क्लब? इलाके में बेतहाशा है, तो नशियात वगैरह भी इम्पोर्ट होती है? जी शरेआम होती है। ठीक है, तो बैठ के करते हैं, खुलेआम करते हैं, तो ऐसे कैसे कर सकते हैं? पुलिस वालों को आगाही है इसके बारे में? ये पुलिस वाले तो भत्ता लेते हैं, भत्ता लेते हैं लोगों से। तो अभी जिसने किया है वो स्नूकर क्लब वाला भी है और इस तरह से जुआ चलाता था। पकड़ा हुआ है, वो मरकजी मुस्लिम ही हुआ है। तो इसलिए आपको लगता है कि शायद पुलिस डीएनए की रिपोर्ट में लेट कर रही है? ये सियासी व्यवस्थियाँ जो सियासतदान है वो कभी उधर, ये वोट है ना, वोट जालिम से भी लेना है और मजलूम से भी लेना है। वोट कभी मुल्क की तकदीर नहीं बदल सकता। जालिम से भी वोट लेना है, उसके पास भी जाना है, जुल्म वाले से भी वोट लेना है। इलाके में बैठ के जो स्नूकर क्लब चलाए जा रहे हैं, वहाँ बैठकर जुआ खेला जा रहा है, भत्ता दिया जा रहा है पुलिस को, पुलिस वसूल कर रही है। पुलिस को पता है कि इलाके में स्नूकर क्लब्स वगैरह हैं, वहाँ पे मंशियात फरोशी होती है। उसी स्नूकर क्लब के मालिक ने एक बच्चे के साथ ज्यादती की है, जो कि अब पुलिस की हिरासत में तो है, लेकिन इस केस में मजीद पेशरफ्त नहीं की जा रही है। डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट को लेट किया जा रहा है। इसकी वजह जो है पुलिस की नाअहली और सुस्ती है, अहले इलाका का ये कहना है। इस बारे में ये है कि हम तो जो पहले भी ये हमारे दोस्तों ने सब ने बात की है
कि असल में हमारी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है, हर मुसलमान की जो बालिग है ना उसकी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने गांव की, अपने शहर की हम अपनी देखभाल करें। जो ये जराइम पेशा लोग हैं उन पर नज़र रखें। ये हमारी बहुत बदबख्ती है कि हम दूसरे बच्चे को अपना बच्चा नहीं समझते। जब तक हम अपने हर बच्चे को अपना बच्चा समझें, हमारे मोहल्ले में जो कोई आदमी शरारत करता है या किसी जगह पे बच्चे खेलते हैं या कूदते हैं तो हमें उसको रोकना चाहिए, और हम नहीं रोकते। ये हमारी बहुत बड़ी बदकिस्मती है, हमें रोकना चाहिए। और जो इस बच्चे के साथ ज़्यादती हुई है इसी वजह से हुई है कि हमारा माशरा जो ये जवान तबका है जो 15 से 20 साल तक का है, ये सारा वारागर्द है, ना इन्होंने कुछ दिहाड़ी करनी होती है ना पैसे कमाने होते हैं। ऊपर से जो यहाँ पे स्नूकर क्लब वगैरह है उनको शह दी जा रही है, वहाँ जाते हैं छोटे जुर्म से ही बंदा बड़े जुर्म की तरफ जाता है। इनको बल्कि ये घर से पैसे लेते हैं और वारागर्दी करते हैं और माँ बाप इनको पूछते तक नहीं है। ये माँ बाप की भी जिम्मेदारी बनती है, हमारी भी जिम्मेदारी बनती है। अब आगे गवर्नमेंट की जिम्मेदारी, अगर हमारे जो मुल्क के अदारे हैं अगर वो हमें अपने कानून को सख्त करें, जो लोग वारा फिरते हैं या ये वीडियो पे देखते हैं, जब तक हम पाबंदी नहीं लगाते, ये किसी जगह पे लोगों ने टेलीविज़न लगाए हुए हैं, किसी ने कुछ किया है, जब तक हम वो बंद नहीं करते, हम हर बच्चा आ रहा हम मदई को जो उसका मुकाबला नहीं कर सकते, तो फिर ये है कि उल्टा मदइयों पे दबाव आ जाता है और मदई आस्ता आस्ता थक। लेकिन ये सिलसिला जारी रहता जाएगा, किसी को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए, सरेआम खड़े करके फांसी दी जाए या चौराहे पे खड़ा करके गोली मारी जाए, ताकि जो लवाहिकीन है, जाके मुद्दई है, उनको भी थोड़ा सुकून मिले और बाकियों के लिए भी एग्जाम्पल सेट हो और कुछ भी करने से पहले वो डरे। इस टाइम मैं उस चाय वकुआ पर मौजूद हूँ जहाँ पे 12 साल अहमद अली को 5 मुलजिमान लेकर आए, यहाँ पे बदफेली का निशाना बनाया और मार कर यहाँ पर फेंक दिया। अब मेरे अकब पे बिल्डिंग देख सकते हैं, ये खंडर का मंजर पेश करिए जो किसी जमाने में पहले सिनेमा होता था, लेकिन अब यहाँ पे सिर्फ खंडर है और ये जराइम की एक अमाजगाह है। यहाँ पे कोई भी जराइम है, नशा फरोख्त करना हो, कोई भी हो, यहाँ पे किया जाता है। तो पुलिस यहाँ पे कोई भी हुकाम इस चीज का कोई नोटिस नहीं ले रही है। अगर यहाँ पे थोड़ा सा शाम हो जाए तो यहाँ पे कोई नजर नहीं आता है। तो ये बिल्डिंग है जहाँ पे अहमद अली को 5 मुलजिमान ने मिलकर बदफेली का निशाना बनाया। तो ये बिल्डिंग आप देख सकते हैं। इस केस के बारे में जो मजीद तफसील है हमारे कोर्ट राधा किशन के नुमाइंदे मजहर करीम मलिक से पूछते हैं कि वो क्या कहते हैं इस केस के बारे में। अस्सलाम वालेकुम सलाम। असल में मसला ये है कि तकरीबन 1.5 साल पहले इधर एक वक़ूआ हुआ जिसमें सेम इसी तरह के इंसिडेंट था। उसमें उसका बच्चे का नाम भी अहमद अली था। अच्छा। तो उसकी उम्र तकरीबन इससे कम थी। उसमें ये हुआ कि वो दुकान के अंदर उसने ना उसको इनके रेप करके उस बच्चे को बंद कर दिया। उसके बाद तकरीबन 2 से 3 दिन तक, पहले की बात है ये अभी 1.5 साल भी नहीं हुआ। अच्छा। तो उसमें वो भूख और प्यास से वो बच्चा बेचारा उधर डेथ हो गई। उसका अभी तक 1.5 साल से केस चल रहा है। आज उनके जो मदई मुकदमा है उनके वाले से मेरी बात हुई तो वो कहते हैं कि हमें 1.5 साल हो गया, हम अदालतों के चक्कर लगा रहे हैं और अभी तक उन मुलजमों को कोई इनके अदालत की जानिब से कोई सजा नहीं दी। और इस वाक़ये को 1.5 साल हो चुके हैं। जी। और मैं समझता हूँ अगर उस मुलजम को इन्होंने वक्त पर सजा दी होती तो शायद ये आज ये वाक़या रूनमा ना हो। अगर तो आप थोड़ा सा पीछे चले जाएँ, यहाँ का एक गाँव है बघेल सिंह वाला, उसमें अली हसन नामी बच्चा था 11 साल, वो भी मदरसे गया, वापसी उसकी भी डेड बॉडी मिली जो कि जो मदई मुकदमा उनके मुताबिक थी कि उससे उस बच्चे के साथ भी ज़्यादती हुई थी। और उसी दिनों कोट माना सिंह है उसमें भी बच्चा था 7 साल,
जिसका नाम अब्दुल्ला था, उसके साथ भी इसी तरह का ये वाक़या रूनुमा। अभी आप हैरान होंगी कि अभी ये केस चल रहा है, अभी इन्हीं दिनों में कल और परसों 2 मज़ीद ज़्यादती के वाक़यात रिपोर्ट हो गए। ये अहमद अली केस के बाद 2 मज़ीद रिपोर्ट हो चुके हैं। एक गांव रत्तीपिंडी का और एक गांव रावल झंगड़ का। वो अभी उनकी एफआईआर भी दर्ज हो चुकी हैं। असल मसला ये है, वो कहते हैं ना, जस्टिस डिले इज जस्टिस डिनाइड। सर, आप इस केस को रिपोर्ट कर रहे हैं, इनके क्या और इनकी शफात आपके सामने है आपकी रिपोर्टिंग के दौरान? असल में जो हैरान कुछ चीज़ ये थी कि मदई ने हमें बताया कि पुलिस ने जो मुल्ज़म शक की बुनियाद पे पकड़े, उसमें जो कुछ मुल्ज़म थे उनके साथ कोई जो रवायती तरीका है वो नहीं अपनाया गया। रिवायती तरीका क्या? ये मतलब कि जिस तरह तफ्तीश एक पुलिस करती है उस तरीके से तफ्तीश नहीं, बल्कि एक प्रोटोकॉल के साथ उन मुल्ज़मान को थाने में बस इनको राज़ी करने के लिए कि भी हमने मुल्ज़म ये आपकी कोशिश कर रहे हैं, हम तो ये देख लें कि ये बैठे हुए हैं। जबकि आप ये अंदाज़ा लगाएं कि तकरीबन 19 रोज़ आज गुजर चुके हैं, तो अभी तक पुलिस ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकी कि मरकजी मुल्ज़म कौन था। मुझे ये बताएं कि जो प्रोटोकॉल दिया जा रहा है वो किस बिना पर दिया जा रहा है, उनका बैकग्राउंड क्या है जो मुल्ज़िम गिरफ्तार हुए हैं? देखें, अब ये कंफर्म तो नहीं पता, लेकिन जाहिर सी बात है किसी के या तो जो सियासी पुष्ट बनाई है या कहीं पे पैसे का इस्तेमाल होता है, तो यही 2 हथियार हैं जो लोग इस्तेमाल करते हैं अपने पुलिस के इन तमाम मुकदमात में। असल मसला ये आता है कि जब तक कानून अपनी रास्ता खुद नहीं ना लेगा तो ये केसेस इस तरह के रिपोर्ट होते रहेंगे। अच्छा, मुझे बताएं, जो डीएनए के रिपोर्ट है वो लेट हो रही है, जी करवाने में उसको ताखीर जो हो रही है, ये पुलिस की वजह से हो रही है? बिल्कुल ना, अभी तक इनको पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी नहीं मिली, ना मेडिकल की रिपोर्ट, सवाए एफआईआर के किसी किस्म की कोई चीज इनको प्रोवाइड नहीं की गई। सिर्फ ये फॉर्मेलिटी पूरी की खामोश करवाने के लिए। और अभी तक हैरानकुन बात ये है कि डीएसपी साहब भी आए हैं, दूसरे इनकी पुलिस भी आए हैं, और अभी डीपीओ कसूर साहब अभी तक इस चीज़ का उनके इल्म में भी ये बात है, लेकिन अभी तक कोई ऐसी कार्रवाई, कोई ऐसी उनकी एफर्ट नज़र नहीं आ रही कि ये जो मदई है ये भी मुतमिन हो सके और ये अहले इलाका भी मुतमिन हो सके। तो बिल्कुल ऐसे ही है। तो जो भी एमपी एमएनए यहाँ पे मौजूद है, जो कह रहे हैं कि हम इस केस में बढ़कर चढ़कर हिस्सा लेंगे या हम उनके साथ हैं, पुलिस ताउन कर रही है उनके साथ, जब चीजें हैं, केस ही नहीं आगे बढ़ रहा, तो ताउन कहाँ हो रहा है? बस यही चीजें है ना कि वो ये सब चीजें सिर्फ इन मदई को सिर्फ ये मुतमिन करने के लिए सारा ये ड्रामा किया जा रहा है। अगर वाकईतन पुलिस काम कर रही है तो नजर भी आना चाहिए वो। मेरे साथ इस वक्त लेबर यूनियन के भी नुमाइंदे हैं, वो भी, क्योंकि जो ये मदई मुकदमा है उनके साथ ये कुलीग है उनके आपस में इकट्ठे काम करते हैं, तो इन्होंने भी सारा ये केस स्टडी किया है, वो भी शुरू दिन से ही इनके साथ रहे हैं। पर लेकर जाएंगे जहाँ पे ये हादसा पेश आया। जी बिल्कुल। कैसे खाली है? ये तकरीबन कोई 30 से 35 साल से खाली है। ये पुराने वक्तों में यहाँ पे सिनेमा हुआ करता था। अच्छा। लेकिन अब ये जराइम पेशा लोगों की अमाजगा बन चुकी है। और क्या जराइम यहाँ पे होते हैं? यहाँ पे जैसे कि डकैतों का छुपना और ज्यादतियाँ और कत्ल की कई वारदातें इस यहाँ पे लाके कत्ल किया जाता है। जी जी, और ज्यादतियाँ तो मामूल है, ये आम सी बात है। जो भी मुल्जिमान है उनके लिए छुपने की बड़ी ही अच्छी जगह है। देख सकती हैं सारी बिल्डिंग खाली पड़ी है और ये काफी सुनसान है ये बिल्डिंग। ये सीढ़ियों से बच्चे को घसीट के मार के ऊपर नीचे ले जाया गया, जैसा कि आपके सामने ये देख सकते हैं। अभी तक खून के निशान, ये अभी भी खून के निशान है यहाँ पे। ये देखें, हमारे कैमरामैन आपको दिखा सकेंगे, कैमरा से मैन दिखा सकें आपको, तो ये देखें, ये ब्लड के निशान है वो बच्चे के। इन्हीं सीढ़ियों से ये नीचे भी हैं कुछ। ये भी है खून के निशान। ये देखिए, ये बिल्कुल ये वाज़िया नजर आ रहे हैं अभी तक, ये अगर कैमरामैन नोट कर सकते हैं। जी बिल्कुल, कैमरामैन हमारे दिखा सकेंगे। ये वाज़िया खून के निशान है जो आप देख सकते हैं कि किस तरह से बेदर्दी से उसको नीचे लाया गया होगा। ये वो जगह है जहाँ पे उसको रखा गया था। ये देखें, ये वाज़िया अभी तक उसके साथ घसीटने के निशान है, ये घसीट के निशान बिल्कुल वाज़िया नजर आ रहे हैं। देखें, ये अंदर उन्होंने मारा कमरे में, यहाँ पे बच्चे के साथ फैली हुई है। जी जी, ऊपर वाली बिल्डिंग में। अच्छा, और इससे भी ऊपर? जी जी। उन लोगों की जुर्रत इस तरह से है कि कैसे ये यहाँ पे ये ब्लड के निशान इधर ये इन सीढ़ियों पे भी मौजूद हैं। देखेंगे यहाँ पे ये इस जगह पे आके उन्होंने पहले नशा किया, ये आपके सामने इंजेक्शन पड़े हैं। हाँ, ये सिरिंजेस वगैरह पड़ी हैं। और ये अगर कैमरामैन नोट कर सके तो
तो पुलिस ने ये यहाँ से एविडेंस कलेक्ट किए हैं? जी पुलिस ने यहाँ से एविडेंस कलेक्ट किए हैं। ठीक है, तो आपके क्या कहते हैं नज़र में क्या क्या चीज़ें अभी तक आई हैं? आपके सामने है जो कुछ भी है, बाकी कुछ चीज़ें जो है पुलिस ने अपनी कस्टडी में ले ली हैं। जी नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि हम उस बिल्डिंग में आए हैं जहां पे उस बच्चे के साथ ज्यादती की गई है। सीढ़ियों से ऊपर आते हुए आप वाज़े तौर पर वो निशान देख सकेंगे जहां पे बच्चे को बेदर्दी के साथ घसीटते हुए नीचे लेकर गए हैं। और ये वो जगह है जहाँ पे वो भी मुल्जिमान नशा करके उस बच्चे के साथ बदफेली की है, उसके बाद उस पर इंतहाई बेईमाना तशद्दुद करके उसको मौत के घाट उतारा गया है। तो ये वो जाए वकूआ है। जी नाज़रीन, आज हमने आपको दिखाया कि किस तरह से 12 साला अहमद अली को 5 मुल्जिमान ने मिलकर बदफेली का निशाना बनाया, फिर उस पर बेईमाना तशद्दुद करते हुए ईंटों के वार से उसके सर पे वार करके उसको मौत के घाट उतार दिया। इसके साथ ही मेरी वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा, IG पंजाब साहब और पुलिस हकाम से और इदारों से मेरी अपील है कि काइंडली ऐसे वाक़ियों का सख्त से सख्त नोटिस लें, मुल्जिमान को कैफ़े किरदार तक पहुंचाएं ताकि ऐसे वाक़यात की रोकथाम हो सके। मेरी वालिदैन से अपील है कि बच्चों की हिफाजत को मुमकिन बनाया जाए और माशरे में मौजूद ऐसे दरिंदों से अपने बच्चों को दूर रखा जाए। इसी के साथ ही मिलेंगे एक नई तलाश के साथ। अल्लाह निगहबान।